Dear students, parents, and all the staff members of KVN Patiala, on the occasion of Sports Day celebration, I would like to suggest you regarding the importance of the sports. Okay, how much sports are important in our life. Somebody said, in this world, our best friend is our health. Health is the best friend for everyone. So when you think, okay, health is our best friend, we have to show our friendship towards the health. So I would like to tell to all of the importance of the health. A healthy mind rests in a healthy body. So how we can get healthy body? For healthy body, food is first priority. You are supposed to take a proper diet, balanced diet. Second thing, you should play every day certain game, that is walking, running, and badminton, football, whatsoever you want to play, you should play according to your timetable. That is very essential. If you will do these both activities, you will take proper food and you will play, definitely your immune system will be very strong. India is country of 130 crore people. So many legendary sports person created history in Indian sports system. Although those are the national games, Asian games or Olympic games. If we take an example of Major Dhyan Chand, hockey player Balbir Singh, wrestler Dara Singh, Mahendra Singh Dhoni cricketer, Sachin Tendulkar, these all are the persons from where you get inspiration. You might be seen a picture Bhag Milkha Bhag and other so many movies which are based on sports. They all inspire us regarding these sports. As far as the Kendriya Vidya Sangathan is concerned, Kendriya Vidya Sangathan take lot of pain for the health development of the children, although those are the boys or girls. At every year we people celebrate, we organize sports at school level, then regional level, then national level, after that SGFI, etc. So dear friends, be careful. Develop your taste in games. Your body should be very solid. Definitely I told you earlier two things, proper diet and everyday playing will make your immune system strong. As I told to all of you, India is a country of 130 crore people. The government of India organized different sports activities. Even you go in villages, so many sports activities are organized which will be called rural games. So now you can think government of India is promoting sports spirit among all the citizens of India. So on this occasion, I expect from every child, you should come forward for playing different games where you have interest. Your parents, I know very well, they give you a lot of time for playing. From the school, we have here physical education period for all of you in formal education. Apart from in the evening, if you want to play certain games in the school campus, from my side, you are always welcome. So many students used to come in our Vidyalaya playing games in the evening. So many girls and boys, daily they are coming in the school, and I see myself, my so many teachers play games. They time to time inspire to all of you in the morning assembly regarding the importance of the game. But my dear students, each and everything you people are supposed to do at your own end. We people can encourage you, promote you, and whatsoever you require from the school side, we are ready for that one. Apart from this, Kendriya Sangathan Authority
time to time organize so many camp for these sports, so that you can give your best in these sports. Regarding the career in these sports, there are so many players. They are very renowned all over the world. How much hard work they have done, everybody knows. If you go through the history of the Olympics, how many players created world record in the Olympic Games? So many Indians, they created a history in the Olympics. At present time, Government of India, Kendriya Vidyalaya Sangathan, taking a lot of effort so that our student can do excel in the field of sport. So on this occasion, I would like to request to all my students, lovely students, please take care of health. You will take off the care health, definitely you come in the field. When you will come in the field, definitely you will play the games where you have interest. So dear students, be healthy, play games, or we want that every child, every citizen of India should free from all the diseases. जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम राजेंद्र सिंह है। मैं ओलंपिक हॉकी में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। मैंने बहुत से टूर्नामेंट खेले हैं, एशियन गेम्स है, वर्ल्ड कप, सो मेनी टूर्नामेंट्स, और इसके साथ साथ मैं इंडियन टीम का नेशनल कोच भी रहा हूँ। और सबसे पहले मैं आभारी हूँ केंद्रीय विद्यालय संगठन के जो कमिश्नर हैं श्रीमती निधि पांडे जी, और साथ साथ फिजिकल जो ट्रेनर हैं श्री नरेंद्र यादव जी, जिन्होंने मेरे को मौका दिया नेशनल स्पोर्ट्स डे के ऊपर अपना मैसेज देने के लिए। नेशनल स्पोर्ट्स डे क्या है? नेशनल स्पोर्ट्स डे 29 अगस्त को जो भारत सरकार है उन्होंने एक डिक्लेयर किया है दादा ध्यानचंद जी के नाम के ऊपर। ये दिन बहुत महान है स्पोर्ट्स के लिए, इंडिया के लिए। और इस दिन के अंदर जो बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं इंडिया के, जो एलीट प्लेयर हैं, उनको इस दिन के अंदर अवार्ड्स मिलते हैं, जैसे कि द्रोणाचार्य अवार्ड, अर्जुन अवार्ड, खेल रत्न, उनको सम्मानित किया जाता है इस डे के अंदर। और साथ साथ में जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, क्लब्स हैं, इसको एक नेशनल स्पोर्ट्स डे के ऊपर मनाते हैं, दादा के जन्मदिन के ऊपर। दादा ध्यानचंद की जीवनी है जो, उसमें मैं कहूँगा भी एक ऐसा जादूगर हिंदुस्तान ने पैदा किया जिसने सारे वर्ल्ड में अपना नाम जमाया। उनका जन्म 29 अगस्त 1905 में हुआ, प्रयागराज में हुआ, और उनके 7 बेटे, और साथ के साथ ही हॉकी प्लेयर, जिसमें उनका जो एक बेटा अशोक कुमार है, जो जिसने ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया, वो मेरे साथ भी खेले, और उनको भी 1975 वर्ल्ड कप के अंदर मैं समझता हूँ भी ये पहला एक ही गोल्ड है हमारे पास वर्ल्ड कप का 75, वो अशोक कुमार उस टीम के मेंबर। अगर दादा की जीवनी में जाएं, दादा का जो स्पोर्ट्स करियर है 1928, 1932 और 1936 में दादा ने गोल्ड मेडल लिए, और एज ए प्लेयर भी खेले, एज ए कैप्टन भी खेले, बहुत वर्ल्ड वाइड उन्होंने डोमिनेट किया। और एक यादगारी मैच है जो 1936 बर्लिन ओलंपिक के अंदर जो बर्लिन में खेला जा रहा था, जिसमें प्रेसिडेंट हिटलर उस मैच को देख रहे थे। वो जब फाइनल मैच जर्मन के साथ इंडिया ने खेला, जिसमें दादा ने खुद 6 गोल किए और इंडिया को गोल्ड मेडल दिलाया। और इसको जब प्रेसिडेंट हिटलर ने देखा भी अब तो जर्मन का कोई बस नहीं चलेगा, तो वो वहां से उठ के चले गए। तो दादा एक हॉकी के जादूगर थे, जिनकी प्रेरणा हम लोगों को लेनी चाहिए। आज की जो पीढ़ी है, जिसमें
मैं समझता हूँ कि हर एक जो बच्चा है, चाहे वो लड़का है या लड़की है, वो शॉर्टकट में जाते हैं। अभी हम लोगों को जल्दी से जल्दी रिजल्ट मिले। हम लोगों को पेशेंस के साथ काम करना चाहिए, हार्ड वर्क करना चाहिए, उनकी प्रेरणा लेनी चाहिए, बहुत मेहनत करनी चाहिए, तब हम सफलता कर पाते हैं। अगर देखो 1928 में ओलंपिक खेले और 36 तक 12 साल अपने आप को मेंटेन रखना और साथ साथ में ओलंपिक गोल्ड लेना एक बहुत बड़ी गर्व की बात है, बहुत बड़ी गर्व की बात है। ये एक दादा सिर्फ इंडिया नहीं, वर्ल्ड वाइड इनका नाम है। दादा ध्यानचंद एक जादूगर थे। लोग सोचते भी इनकी हॉकी के साथ जो बाल है चिपक जाता है। तो एक ये कलाकारी है, इसकी ये ट्रेनिंग है, ये अभ्यास है, दिन रात उन्होंने अभ्यास किया, जिसमें उनको ये मास्टरी मिली, उनको नाम मिला, तभी उनको दुनिया याद करती है। तो हम जितने भी आज की पीढ़ी है, मैं जितने भी बच्चे सुन रहे हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन के, मैं उनको ये मैसेज देना चाहता हूं कि आप हार्ड वर्क करें। हालांकि आज की पीढ़ी है जो वो ज्यादातर इंडोर गेम्स, जैसे मैं ये कहूँगा भी टीवी के ऊपर, मोबाइल के ऊपर इंडोर गेम्स खेलते हैं और उनका जो एक विजन है, मैं ये भी कहूँगा भी 10-10, 12-12 साल के बच्चे हैं जिनको ये चश्मा लग जाता है पढ़ने के लिए। तो हम लोगों को कुछ सीखना चाहिए, सीख लेनी चाहिए। आजकल कोविड के टाइम, जितना टाइम हम लोगों का ये चल रहा है, इसके अंदर हम लोगों को एक शिक्षा लेनी चाहिए, हम लोगों को एजुकेट होना चाहिए। हम बच्चों को ये सीखना चाहिए भी हम कैसे दौर से निकल रहे हैं, हम लोगों को क्या क्या परेशानियां हैं। अभी भी मैं देख रहा हूँ इस समय कुछ स्कूल अभी भी मेरा ख्याल है कि अभी भी स्कूल बंद है, लेकिन घर रह के भी वो एक्टिविटी कर सकते हैं, स्पोर्ट्स से जुड़ सकते हैं। अगर स्पोर्ट्स में जुड़ेंगे, फिटनेस रहेगी, तो मैं समझता हूँ भी फिटनेस जो है, अगर फिटनेस है, हम फिट हैं, तो हम सब काम कर सकते हैं, हर एक चीज पा सकते हैं। अगर फिटनेस नहीं है तो कुछ नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि आज की पीढ़ी जो है उनको हार्ड वर्क की तरफ जाना चाहिए और मेहनत करनी चाहिए और डिसिप्लिन में रह के कोई भी गेम हो। मैं ये नहीं कह रहा भी आप हॉकी खेलो, आप किसी भी गेम को अडॉप्ट करो, लेकिन आपका कोई टारगेट होना चाहिए, क्योंकि स्पोर्ट्स आज के दिन में एक स्पोर्ट्स है, एक इंडस्ट्री बन चुका है, बहुत से प्लेयर हैं। ये इतने लाइमलाइट में, आप सचिन तेंदुलकर को देखो, आप पीवी सिंधु को देखो, स्नेहा नेहवाल को देखो, प्रोफेशनली इन्होंने मेहनत की है, बहुत मेहनत की है और यहाँ तक पहुंचे हैं। आज वो इंडिया के स्टार हैं, आज वो इंडिया के स्टार हैं। लेकिन ये सारी चीजें तब आएंगी, हम लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए, उनके ऊपर प्रैक्टिकल काम करना चाहिए। मैं आप सबको यही मैसेज देता हूँ कि देयर इज नो शॉर्टकट, यू हैव टू वर्क हार्ड, बहुत मेहनत करनी चाहिए। एक बार फिर मैं आप सबको स्पोर्ट्स डे के ऊपर आप सबको बधाई देता हूँ और केंद्रीय विद्यालय संगठन को, जो कि इंडिया में बहुत बड़ा संगठन है, मैं निधि पांडे जी से ये बेनती करूंगा, इस संगठन के अंदर जितना भी हो सके बढ़ चढ़कर आप स्पोर्ट्स का जो है उसको शुरू करें, ताकि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो तंदुरुस्त हो, उनकी इम्यूनिटी हाई हो। और जैसे कि कोविड चल रहा है, तो एक प्लेयर और केंद्रीय विद्यालय संगठन का एक और भी नाम हो जिसमें उनका स्पोर्ट्स में नाम जुड़े। मैं इन शब्दों के साथ आप सबको एक बार फिर बधाई देता हूं। धन्यवाद। आज पूरे भारतवर्ष में 29 अगस्त 2020 को नेशनल खेल दिवस के रूप में, नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में मनाया जाता है। हमारी केंद्रीय विद्यालय की शुरुआत इस क्षेत्र में सबसे अव्वल है और इस क्षेत्र में हमारे केंद्रीय विद्यालय संगठन का जो
आशीर्वाद है। हम सभी फिजिकल एजुकेशन टीचर को ये सम्मान मिला है कि हम इस कार्य को संपन्न करें। और सबसे पहले मैं आज 29 अगस्त नेशनल स्पोर्ट्स डे पर मैं हमारे जो कमिश्नर हैं श्रीमती निधि पांडे जी और हमारे जो डिप्टी कमिश्नर हैं देव कुमार जी, हमारे प्रिंसिपल साहब श्री रणधीर सिंह जी, हमारे उपाचार्य श्री सुरेंद्र सिंह जी का सभी का सहृदय से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने आज हमारे क्षेत्र में जो हमारे साथ चलकर इस नेशनल स्पोर्ट्स डे के लिए हमें जो सम्मान, हमें जो ताकत, हमारा जो साथ दिया है, उससे हमारे प्यारे बच्चों को हौसला जरूर मिलेगा। मैं इस विषय में सभी आज के सभी परिवेश में सभी स्टूडेंट्स का हमारे कार्य को संपन्न करने के लिए कि आज 29 अगस्त है, इस दिन नेशनल स्पोर्ट्स डे हम मना रहे हैं, तो इसके लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि नेशनल डे क्यों मनाया जाता है, ये किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो हमारा जो इसका मेन दायित्व है 29 अगस्त को मनाने का, नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाने का, इसमें हमारा जो कार्य है वो क्या है कि हम इसको नेशनल स्पोर्ट्स डे को क्यों मना रहे हैं। तो हमारा जो क्षेत्र है ये मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस का जो उपलक्ष्य है उसको हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नेशनल स्पोर्ट्स डे को 29 अगस्त को मना रहे हैं। हमारे जो ध्यानचंद जी हॉकी के बहुत बड़े खिलाड़ी रहे हैं, ओलंपिक लेवल के खिलाड़ी रहे हैं। उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व खाली एक प्लेयर के रूप में नहीं किया, एक बहुत ही अहम खिलाड़ी के रूप में, जो कि माने हुए खिलाड़ियों के रूप में उन्होंने प्रतिनिधित्व किया। और उनकी जो याद है, उनकी याद को स्मरणीय बनाने के लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन ने इस विषय पर मुझे आज ये मौका दिया है, एक फिजिकल एजुकेशन टीचर को मौका दिया है। मेरा नाम डॉक्टर नरेंद्र सिंह यादव फ्रॉम केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 से हूँ मैं, और मुझे आज इस खिलाड़ी के ऊपर बोलने के लिए, इस वीर सिपाही को बोलने के लिए, इनके ऊपर जो शब्द मुझे मिले हैं, मुझे बड़ा गौरवित महसूस हो रहा है। तो मेजर ध्यानचंद जी का जो जन्म है 29 अगस्त 29 अगस्त 1905 में प्रयागराज, आज के रूप में हम अगर इलाहाबाद कहें, इलाहाबाद के एक छोटे से गांव में हुआ। मेजर ध्यानचंद जी की शुरू से रुचि इसी खेल में थी। इनको और खेलों में भी बहुत, रेसलिंग में भी बड़ा इंटरेस्ट था, जबकि इनकी जो प्रतिभा थी वो किसी और ही क्षेत्र में इनको कहीं और ले जाना चाहती थी। तो प्यारे साथियों, आज के मेजर ध्यानचंद जी को जो उनकी सच्ची श्रद्धांजलि जभी होती है जब हम इस नेशनल स्पोर्ट्स डे को सभी आज शपथ लें कि इस क्षेत्र में हम सभी भारतवासी, भारत के लोग, भारत के खिलाड़ी, भारत के बच्चे, उनसे, उनके जीवन से बहुत बड़ी सीख लेंगे और उनके जीवन को हम अपने जीवन में ढालने की कोशिश करेंगे। उनकी कामयाबी, उनकी मेहनत, उनकी जो रेगुलरिटी इस क्षेत्र में रही। आपको बता दूं मैं प्यारे साथियों कि वो जब खेलते थे तो उनका पुराना नाम ध्यान सिंह था। तो ध्यान सिंह के नाम से उन्होंने सेना में भर्ती हुए। 1927 के अंदर वो हमारे भारतीय सेना में आए और उनकी जो उपलब्धियां रही, एक सिपाही के रूप में उन्होंने ज्वाइन किया। उसके बाद वो 1928 में ओलंपिक में गए, फिर 1932 में गए। तो ऐसे उन्होंने 3 दफा भारत का जो प्रतिनिधित्व है ओलंपिक लेवल पर किया और तीनों दफा भारत को शानदार जीत से, स्वर्ण पदक से भारत की हॉकी टीम ने, पुरुष हॉकी टीम ने प्रतिनिधित्व किया। प्रतिनिधित्व ही ओनली नहीं किया बल्कि इसमें स्वर्ण पदक से अपनी विजेता के रूप में पूरे वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा नाम कमाया। तो मेरे साथियों, उन्होंने ये लगन कहाँ से पाई? उन्होंने ये लगन अपने छोटे से गांव में, जब वो सेना में आए तो रेसलिंग करते थे। फिर उन्होंने उनके जो एक साथी थे, उन्होंने उनको मोटिवेट किया कि आप हॉकी खेलिए। इनका कद कोई लंबा चौड़ा नहीं था।
आप सोचते हैं कि वो बहुत लंबे चौड़े थे तो ही इतने बड़े खिलाड़ी बन पाए। मात्र 5 फुट 7 इंच उनका कद था और वो बहुत ही दुबले पतले खिलाड़ी रहे, पर उनका जो स्टेमिना था वो आउटस्टैंडिंग था। हॉकी गेम एक स्टेमिना के रूप में और फुटबॉल गेम ये भी एक स्टेमिना के रूप में ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो इसको सबसे बड़ी जो बात है कि स्टेमिना कहाँ से आता है, मेहनत से आता है। उन्होंने जो दिन रात मेहनत की इस खेल को ऊंचा करने में, अपने देश को उन्नति दिलाने में, अपने देश को स्वर्ण पदक दिलाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। भारत के सभी खिलाड़ी उनके अनुयायी रहे और उनकी प्रतिभा से इतने गौरवित होते थे और आज भी हम सभी खिलाड़ी उनके इस गौरवमान सम्मान को बनाए रखें। उनकी छोटी छोटी बातें मुझे याद है कि उन्होंने एक दफा हॉलैंड में जब वो खेल रहे थे तो वहाँ की जो ऑर्गेनाइजर थे उनको ये शक हुआ कि इनकी जो हॉकी है वो जब खेलते हैं तो हॉकी के साथ जो बॉल है वो चिपक जाती है, तो वो उससे अलग नहीं हो पाती। तो ये सभी उनकी मन में जो आशाएं आकांक्षाएं जो पैदा हुई, जो उनके प्रति एक दुविधा थी कि उनके मन में जो चल रहा था कि भाई बॉल इतनी कैसे चिपक सकती है, हमारी क्यों नहीं चिपकती। तो उनकी स्टिक को स्पेशल तोड़ा गया अनुमति लेके और उस स्टिक को ये देखा गया कि कहीं कोई चिप ऐसी तो नहीं है, कोई चिंबक तो नहीं लगा रखा है। तो ऐसी जब चीजें जब देखी गई तो उसमें कुछ नहीं निकला, क्योंकि ये सारी उनकी लगन, उनकी मेहनत, ध्यानचंद की मेहनत पे डिपेंड करता था। प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, उनकी जो मेहनत थी वो खाली मेहनत नहीं करते थे, वो हार्ड वर्कर थे। सेना में भर्ती होने के बाद उन्होंने कभी पीछे पलट के नहीं देखा। एक सिपाही के रूप में वो आए और लास्ट पदोन्नति करके लैंस नायक, नायक, सूबेदार, नायब सूबेदार और कैप्टन, लेफ्टिनेंट और फिर बाद में मेजर तक के पदों तक वो आगे बढ़ते रहे। तो उनका ये क्षेत्र, उनकी मेहनत और ये सारी लगन उनको, ये सारे स्टार्स भारत की सेना ने उनको दिए। उनके इतने अच्छे रिप्रेजेंटेशन के कारण, उनकी अच्छी प्रतियोगिताओं में प्रदर्शन के कारण ये सब चीजें उनके कहां से मिली, इनकी मेहनत से मिली। अब आप पूछेंगे कि वो इतनी मेहनत कैसे करते थे। अब वो चांदनी रात में जब वो देखते थे, उनके सेना में भर्ती होने के बाद वो हॉकी दिन में ही नहीं खेलते थे, रात को चांदनी रात में उस चांदनी रात का फायदा उठाते थे और हॉकी और बॉल को लेके अकेले खेलते रहते थे। तो चांदनी रात में जब उनको उनके खिलाड़ी साथियों ने जब उनको खेलते हुए देखा तो उनको बड़ा गर्व हुआ और उन्होंने, उनके साथियों ने उनका नाम ध्यान सिंह की जगह ध्यान चंद्र सिंह रख दिया। तो प्यारे खिलाड़ियों, बाद में उनका नाम धीरे धीरे चेंज होता गया और ध्यान चंद्र की जगह ध्यानचंद हो गया। तो आज उस खिलाड़ी की मैं विशेषता गिनाने लगूं तो उनकी प्रतिभाएं उनकी इतनी विशेष रही हैं कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आप सभी उनकी बातें बता सकूं। और उनकी जो विशेषताएं हैं वो खाली एक, देखिए, एक सेना में भर्ती होने के बाद इतने पदों पे वो रहे, इतनी मेहनत उन्होंने की और हमारे भारतवर्ष को इतनी स्वर्ण पदक उन्होंने दिलाए। तो एक दफा की बात है कि उनके जो जब जर्मनी का द्वितीय युद्ध चल रहा था तो जर्मनी में जब हमारे ध्यानचंद जी हॉकी टीम हमारी वहाँ खेलने जा रही थी, जर्मनी के साथ मैच था, तो उस दौरान क्या हुआ कि जर्मनी के जो उस टाइम के बड़े आपको कट्टर जो वहाँ के नेता थे, बड़े तानाशाह नेता के रूप में जिनको जाना जाता है, जिनका नाम हिटलर था, तो हिटलर जी ने जब ये उनका पूरा मैच देखा और उस मैच में जर्मनी हार गया और जब वो हार गया तो वो उस मैच को देख नहीं पाए और वो वहाँ से हिटलर जी चले गए। उसके तुरंत मैच जब खत्म हो गया तो शाम को उन्होंने मेजर ध्यानचंद जी को इनवाइट किया और उनसे कहा कि मैं आपको एक मौका देता हूँ, आप भारत को छोड़ के जर्मनी की तरफ आ जाएं, आप जर्मनी की तरफ से खेलें, मैं आपको स्वर्ण मुद्राओं से और बच्चे अच्छे ओहदे पर रखूंगा, आपको बड़ा सम्मान दूंगा पूरी जर्मनी की तरफ से, आप भारत को छोड़ दीजिए। उन्होंने कहा नहीं, उनकी सच्ची देशभक्ति उनके कण कणों में थी। उन्होंने कहा नहीं, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे अपने भारतवर्ष की, मेरी रगों में भारतवर्ष का खून है
और मैं अपने भारतवर्ष की ऋण कभी भी चुका नहीं सकता उससे अलग होकर। इसलिए मुझे जो भी फैसला करना है भारत में रहकर करना है। मुझे जैसा भी है मेरा भारत मेरे लिए काफ़ी है। तो क्षमा करें श्रीमान, मुझे मेरा भारत ही काफ़ी है, मुझे ज़्यादा पैसों की आवश्यकता नहीं है। तो प्यारे देशवासियों, एक बहुत बड़ी विशेषता थी उनके, एक बहुत बड़े कैरेक्टर की यहाँ सीख हम ले सकते हैं। आज जितने भी यंग हमारे जो दूसरे देशों में भागते हैं, सिर्फ पैसे के लिए भागते हैं, अपनी रिकॉग्निशन को खो देते हैं। तो बहुत सी चीज़ें जो हमारे क्षेत्र में बहुत से खिलाड़ी आज दूसरे देशों की तरफ से खेल रहे हैं, अपने देश को छोड़ के चले जाते हैं सिर्फ पैसे की लालच के लिए। तो मेरे सभी देशवासियों और खिलाड़ियों से और प्यारे बच्चों से सीख है कि उनसे रिक्वेस्ट है कि वो ध्यानचंद के कैरेक्टर को अपने जीवन में अपनाएं और अपने देश से प्यार करें, जैसा कि मेजर ध्यानचंद जी ने किया। और उनकी ऐसी समरणीय शक्ति जीवन शैली को हमें आदर्श बनाती है। उनके आदर्शों को हमने बहुत आगे तक लेके जाना है। उनको हमें छोटे छोटे जैसा कि हमारे भारतवर्ष की हॉकी हमारा राष्ट्रीय गेम है, आज हम किस स्तर पर खड़े हैं। आज कहीं पर भी भारत में दूर दूर कोने तक कोई हॉकी दूर तक दिखाई नहीं देता, ना कोई खिलाड़ी हॉकी का दिखाई देता है। पहले हमारे छोटे छोटे गांव के सब स्कूलों में खुलिया और एक डंडा लिया जाता था जिसको हम हॉकी का रूप आगे भविष्य में मिला, और ये हर गांव में खेला जाता था। एक कपड़े की बॉल बनाते थे, उसको सील लेते थे और धागे और सुई से उसको सील सील के मोटी बना लेते थे, और कोई लकड़ी का मजबूत सा डंडा जो टेढ़ा सा होता था उससे वो खुलिया कहते थे, उसको हम गांव में खेलते थे। और उसी गेम को आगे रिकॉग्नाइज करते हुए इस गेम को नेशनल गेम का दर्जा मिला। ये हमारे छोटे छोटे गाँव में ये गेम खेला जाता था, क्योंकि इसमें कोई पैसा खर्च नहीं होता था, कोई हमारे बाहर से इक्विपमेंट हमें खरीदने की आवश्यकता नहीं थी। हमारी जो देश नया नया देश आज़ाद हुआ था, तो ये सब चीज़ें हमारे देश की, इन्हीं ऐसे गेम हमें पसंद करने चाहिए जो हमारे राष्ट्रीय नेशनल गेम्स हैं, जैसे कबड्डी है, हॉकी है। इन गेमों से हमारे वॉलीबॉल से, इनमें कोई ज़्यादा खर्चा नहीं होता है, बेशर्ते कि हमें कोई पक्के कोर्ट की आवश्यकता नहीं होती। अभी देखिए एक चेंजिंग कितना आया है, अभी एस्ट्रोटर्फ बन गए, ठीक है, अभी प्लास्टिक की घास पर हम हॉकी खेलते हैं। तो एक दफ़ा की मुझे इनकी बात याद आ गई, जब ये ओलंपिक में खेलने गए तो वहाँ की जो एस्ट्रोटर्फ था, जो एक प्लास्टिक की घास होती है, तो उसमें जानबूझ के इंडियंस के पास उस टाइम हमारी भारतवर्ष की टीम की हॉकी की ऐसी हालत थी कि उनके पास जूते जो थे एक साधारण से जूते पहने हुए थे, और आधे जूते तो उनमें ऐसे थे जो फटे हुए थे मेहनत कर करके। तो प्यारे देशवासियों, उस अवस्था में भी उन्होंने देश का प्रतिनिधित्व किया, एक कैप्टन का प्रतिनिधित्व किया, और उस दौरान जब वो खेल रहे थे तो वहां उन्होंने जान को उस एस्ट्रोटर्फ पे पानी उसमें डाल दिया एक्स्ट्रा, ताकि ये फिसल जाएं और ये गिर जाएं। उन्होंने ध्यानचंद जी ने क्या किया, उस किसी से उन्होंने कोई शिकायत नहीं की, उन्होंने अपने शूज निकाले और नंगे पैर खेले हुए, नंगे पैर खेलते हुए उनके पैरों में छाले पड़ गए, उनके पैरों से खून रिसने लगा, पर उन्होंने भारत को स्वर्ण पदक दिलाया। तो प्यारे देशवासियों, ऐसे विजार्ड हमारे हॉकी प्लेयर ध्यानचंद जी को सच्ची समर्पण जभी होगा जब हम उनके जीवन से रियल में अपने जीवन में उनकी एक भी अच्छी आदत को हम अपने जीवन में डालें, और हॉकी जैसे गेम जो कि हमारा नेशनल गेम है उसको दोबारा से हम अपने स्कूलों में, अपने लोगों में, अपने सोसाइटी को ये मोटिवेट करें कि वो सब इसी गेम को दोबारा से लेके आएं और खेलें और आगे बढ़ें। जय भारत, जय हिंद। थैंक यू। नमस्कार, मैं गुरविंदर सिंह, केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 पटियाला कैंट से। आज मैं आप सबके सामने प्रस्तुत हूँ अपना विषय लेके, कोविड-19 फिटनेस एट होम अ फीडबैक। तो आज हम सब जानते हैं जैसा कि आज के समय में पूरा विश्व एक महामारी से जूझ रहा है, जिस महामारी के कारण सब कुछ ठप पड़ चुका है, सब कुछ बंद पड़ चुका है। तो इस महामारी में क्या हमारी फिटनेस भी बंद होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। तो इसी फिटनेस को जारी रखने के लिए, निरंतर जारी रखने के लिए कुछ मापदंड जो मैंने अपनाए, जो मेरे अभिभावकों, मेरे अध्यापकों ने मुझे बताए, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। मैंने फिटनेस को 2 भागों में बांटा, एक मेंटल फिटनेस और एक हेल्थ फिटनेस। तो मेंटल फिटनेस में क्या है कि जैसे कि हम सब जानते हैं, इस महामारी के कारण हमारी पूरी समाज में एक नकारात्मक प्रवृत्ति बढ़ चुकी है,
तो इस नकारात्मक प्रवृत्ति को हटाने के लिए हमें आपस में बातचीत और इस बीमारी के ऊपर जागरूकता लाने की जरूरत है। और हम एक कम्युनिटी बना सकते हैं जहां पे हम इसके ऊपर एक गुड टॉक्स कर पाएं कि इसका एक पॉजिटिव आउटलुक क्या है। और रही बात फिजिकल हेल्थ की या हेल्दी फिटनेस की, तो उसमें हम दो फैक्टर्स को कंसिडर करेंगे। एक तो पहला हमारा भी हम किस तरीके से अपनी फिजिकल एक्टिविटीज को कर सकते हैं और हम किस तरीके से अपने खाने को बदल सकते हैं। तो कोविड-19 से बचने के लिए हमें सबसे पहले अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करनी है। तो घर में हम एक ही चीज कर सकते हैं जो बहुत रिलायबल है, वो है योगा। योगा में मैं पहले काफी मोटा था, तो लॉकडाउन पीरियड में मैंने भी योगा अपनाया। तो उसके लिए कुछ आसन मैं आपको बताता हूँ। शीर्षासन है, वज्रासन है और भी कई आसन है जिसे आप करके अपनी फिजिकल एक्टिविटीज को कंटिन्यू रख सकते हैं घर पे बैठे बैठे। और रही बात खाने की, खाना एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि खाने से ही आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी जो आपको कोविड-19 के सामने खड़ा रखेगी। तो हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहा है भी आप काढ़ा पीजिए। एक बहुत जरूरी बात हो जाती है कि हमें अपनी खाने में हरी सब्जियों का सेवन ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। इसी संकल्प में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और कोशिश करता हूं कि आप मेरी बातों को संज्ञान में लीजिए। शीर्षासन, शीर्षासन से आपके पूरे शरीर का रक्त प्रवाह तेज होता है। मैं आपको शीर्षासन करके दिखाता हूँ। वज्रासन, खाना खाने के बाद तुरंत अगर आप कोई आसन कर सकते हैं तो वो केवल और केवल वज्रासन है। अगर आपके पास समय की कमी है, आपको वॉक पे जाना है पर आप वॉक पे नहीं जा सकते, पर आप इससे वॉक का फायदा भी ले सकते हैं। आप पढ़ाई करते हुए समय इस आसन में बैठेंगे तो आपकी पाचन क्रिया में ये मदद करेगा। मैं अब आपको वज्रासन करके दिखाता हूँ। Good morning, dear students, parents, and my dear colleagues. Today we all are celebrating Online National Sports Day during COVID-19, and the only motive of this celebrations and making all these online arrangements is to get and spread awareness about fitness among each other. In this era of technology, where sitting jobs are increased and physical activity has almost decreased, so it is actually need to care about our fitness. So to achieve this motive, our KVS is always taking so many initiatives. It is launching so many programs from time to time, like SPSB, Swachh Bharat, Swachh Bachche program, and participating in government sports movements like Fit India movement, and also developing so many apps like Go for Fit, Fit KVN for fitness assessment. Our KVS has taken initiatives to prepare physical health and fitness profile cards for more than 12 lakh KV students under SBSB program, which was launched in August 2017 by Union HRD Minister Shri Prakash Javadekar in Kerala. The program is actually encouraging everyone to participate and play in games for 60 minutes every day. The objective of this program is to bring back the childhoodness amongst children and making recreational games and physical activities an integral part of our learning process. Under Fit India movement, our Kendriya Vidyalaya number 1 Patiala Kent has organized an event, Freedom Fit India Run, and the time period for this event is benefit from 15 August to 2nd October 2020.
The concept behind this run is that it can be run anywhere, anytime. So today, through this platform, I am informing to all the students and parents to take part in it. In the last, I would like to sum up my lecture with very old and wise saying, that is, health is wealth. As we are taking care of our wealth, we should take care of our health, and we should prioritize the care of our fitness and health, as it's the need of today's time and today's technological world. Thank you. Good morning. I'm Eliza Barik of 9th standard studying in KV number 1 Patiala Kent. As we are locked up at our houses due to this corona pandemic, our school has decided to celebrate this year's sports day as a lockdown version. We are assigned some of the sports activities to keep us fit, and I am glad that KV is organizing sports, quizzes and art competitions for us. Thank you. नमस्कार, हमें जानकर खुशी हुई है कि केंद्रीय विद्यालय हमारे बच्चों के लिए ऑनलाइन स्पोर्ट्स डे का आयोजन कर रहा है और इसी कार्यक्रम के दौरान वो बच्चों के लिए ऑनलाइन क्विज, फिट इंडिया रन, आर्ट कंपटीशन जैसे अलग अलग कार्यक्रम कर रहा है और हमारे बच्चे उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। धन्यवाद। नमस्ते, मेरे बच्चे केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 पटियाला कैंट में पढ़ते हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि केवी हमारे बच्चों के लिए ऑनलाइन स्पोर्ट डे मनाने जा रहे हैं। इसमें बच्चे भी बड़े उत्साह से भाग ले रहे हैं। वो हर रोज़ रनिंग करते हैं, आकर अपने टीचर्स को बताते हैं कि वो आज इतना दौड़े। इसके लिए मैं केंद्रीय विद्यालय को तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। सभी बच्चों और अभिभावकों को राष्ट्रीय नेशनल स्पोर्ट्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हम मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन को हर प्रतिवर्ष इसी प्रकार से राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। और इस दुनिया के बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर आजकल खेलों का बहुत बड़ा महत्व है। अमेरिका में एक स्टडी के अनुसार एक ऐसा पाया गया कि वहाँ 80-80% जो बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं जो स्कूल में पढ़ते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स की ओर आकर्षित रहते हैं। उनको विशेष तौर पर खेलने के ज़्यादा से ज़्यादा मौके और अवसर दिए जाते हैं। प्राय देखा गया है जो बच्चे ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं वो डिसिप्लिन भी रहते हैं और बल्कि एक उनका सामाजिक व्यवहार भी बेहतर रहता है। उनका एक अग्रेशन जो एंजाइटी जो अलग अलग तरह का जो तनाव है वो इस ब्लड सर्कुलेशन के साथ साथ उनका उस तनाव को दूर करने में मदद करता है। और आजकल जिस तरह से लॉकडाउन की प्रक्रिया है, बच्चे घरों में कैद हैं और ऑनलाइन इस प्रकार की जो भी एजुकेशन का प्रक्रिया जो चल रही है, ऐसी व्यवस्था में एक बहुत ज़रूरी है कि वो घर पर रह कर के किसी न किसी प्रकार की एक्सरसाइज करें, जिससे न केवल एंजाइटी दूर करता है बल्कि दिमाग की कार्य प्रणाली भी बहुत बेहतर तरीके से होती है। तो मैं एजुकेशन के साथ, पढ़ाई के साथ साथ किसी भी देश के बच्चों का नागरिकों के रूप में अच्छा निर्माण करने के लिए ये ज़रूरी है कि वहाँ के बच्चे स्पोर्ट्स में साथ साथ खेलें। अगर हम चाहते हैं कि स्वस्थ समाज का निर्माण हो, अगर हम चाहते हैं कि बच्चे अच्छे तरीके से ध्यान केंद्रित करके पढ़ें, अगर हम चाहते हैं कि उनका बेहतर स्वास्थ्य बने, अगर हम चाहते हैं कि समाज में एक टॉलरेंस की भावना पैदा हो और अगर हम ये चाहते हैं कि समाज एक स्वस्थ समाज के रूप में हो,
तो ये बेहतर ये इस बात को न केवल बच्चों को बल्कि सभी पेरेंट्स को भी समझना आवश्यक होगा कि एजुकेशन के साथ साथ, इस पढ़ने के साथ साथ वो भी एक को-करिकुलर एक्टिविटी के तौर पर वो भी एक हमारे एजुकेशन का एक बहुत बड़ा और इम्पॉर्टेंट पार्ट है। उसको उतना ही महत्व दें जितना कि दूसरे सब्जेक्ट्स को दिया जाता है। और इसको स्पोर्ट्स को ना केवल खेल के आधार पर ना देख करके फिजिकल एक्टिविटीज़ के तौर पर देखा जाना चाहिए। चाहे हम किसी भी प्रकार के खेल को खेलें या किसी प्रकार की फिजिकल एक्सरसाइज करें, वो ग्रुप में हो, 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के बीच में हो, तो एक सामाजिक सौहार्द और समरसता का एक वातावरण निर्माण करने में मदद मिलेगी। इसके लिए आप सभी को एक बार फिर मेरी तरफ से और पूरे विद्यालय परिवार की तरफ से आप हमारे राष्ट्रीय खेल दिवस पर पुनः बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। अपने नित्य कर्म से निपटते हुए ये योगा करने का अभ्यास करें ताकि ये शरीर आपका फिट रहे। खेले जी चलो खेले जी आओ दिल लगा के हम खेले, खेले जी चलो खेले जी आओ जान लगा के सारे खेले। लाखों की एक दवा है खेल मिटाए गम, खेलेंगे तो सीखेंगे हम क्या है जीवन। सभी नशों से बड़ा नशा है नशे में डूबे हम, खेलेंगे तो बदलेंगे हम सारे मौसम। गुस्से को उदासियों को दूर दो भगा, नफरतों शिकायतों का भूलो पता। जीतो हारो गिर के संभल के जरा, सच्ची ताजी सेहतों का ले लो मजा। खेलेंगे हम जो खेल अरे बदले अपना देश, अरे कस के कमर अब खेलो इंडिया। खेले जी चलो खेले जी आओ दिल लगा के हम खेले, खेले जी चलो खेले जी आओ जान लगा के सारे खेले। पसीने की बूंदे जो खिले, लगे के सीटियों में मोती है मिले। दिल में थक थक धड़कने चले, यूं लगे कि जोश को दो पहिए मिले। हाँ मैदानों की मस्तियों में दिल जो लगे, वो दिल भी तो मैदानों से बड़े हैं बने। ओहदे चाहे जो भी हो छोटे या बड़े, खेल के मैदानों में सब साथ हैं खड़े। अरे छोटी सी ये गेंद बदलेगी पूरी गेम, अरे गेंद को उछालो चलो खेलो इंडिया। खेले जी चलो खेले जी आओ दिल लगा के हम खेले, खेले जी चलो खेले जी आओ जान लगा के सारे खेले। खेले जी चलो खेले जी आओ दिल लगा के हम खेले, खेले जी चलो खेले जी आओ जान लगा के सारे खेले। लाखों की एक दवा है खेल मिटाए गम, खेलेंगे तो सीखेंगे हम क्या है जीवन। सभी नशों से बड़ा नशा है नशे में डूबे हम, खेलेंगे तो बदलेंगे हम सारे मौसम। गुस्से को उदासियों को दूर दो भगा, नफरतों शिकायतों का भूलो पता। जीतो हारो गिर के संभल के जरा, सच्ची ताजी सेहतों का ले लो मजा। खेलेंगे हम जो खेल अरे बदले अपना देश, अरे कस के कमर अब खेलो इंडिया। खेले जी चलो खेले जी आओ दिल लगा के हम खेले, खेले जी चलो खेले जी आओ जान लगा के सारे खेले। पसीने की बूंदे जो खिले, यूं लगे के सीटियों में मोती है मिले। दिल में थक थक धड़कने चले, यूं लगे कि जोश को दो पहिए मिले। हाँ
दिल जो लगे, वो दिल भी तो मैदानों से बड़े हैं बने। ओहदे चाहे जो भी हो, छोटे या बड़े, खेल के मैदानों में सब साथ हैं खड़े। अरे छोटी सी ये गेंद बदलेगी पूरी गेम, अरे गेंद को उछालो चलो खेलो इंडिया खेले जी, चलो खेले जी, आओ दिल लगा के हम खेले, खेले जी चलो खेले जी, आओ जान लगा के सारे खेले। खेले जी चलो खेले जी, आओ दिल लगा के हम खेले, खेले जी चलो खेले जी, आओ जान लगा के सारे खेले। लाख दुखों की एक दवा है, खेल मिटाए गम, खेलेंगे तो सीखेंगे हम क्या है जीवन। सभी नशों से बड़ा नशा है, नशे में डूबे हम, खेलेंगे तो बदलेंगे हम सारे मौसम। गुस्से को उदासियों को दूर दो भगा, नफरतों शिकायतों का भूलो पता। जीतो हारो गिर के संभल के जरा, सच्ची ताजी सेहतों का ले लो मजा। खेलेंगे हम जो खेल, अरे बदले अपना देश, अरे कस के कमर अब खेलो इंडिया खेले जी, चलो खेले जी, आओ दिल लगा के हम खेले, खेले जी चलो खेले जी, आओ जान लगा के सारे खेले। टप 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 पसीने की बूंदे जो खिले, यूं लगे के सीटियों में मोती है मिले, दिल में थक थक धड़कने चले, यूं लगे कि जोश को दो पहिए मिले। हाँ हाँ हाँ, मैदानों की मस्तियों में दिल जो लगे, वो दिल भी तो मैदानों से बड़े हैं बने। ओहदे चाहे जो भी हो, छोटे या बड़े, खेल के मैदानों में सब साथ हैं खड़े। अरे छोटी सी ये गेंद बदलेगी पूरी गेम, अरे गेंद को उछालो चलो खेलो इंडिया खेले जी, चलो खेले जी, आओ दिल लगा के हम खेले, खेले जी चलो खेले जी, आओ जान लगा के सारे खेले। उन सभी बच्चों से जो हमें सुन पा रहे हैं, मैं ये कहना चाहूँगा कि खेल दिवस की अंतर्भावना ये है कि हम खूब मेहनत करें, टीम स्पिरिट से, खेल भावना का पालन करते हुए, खेल नियमों का पालन करते हुए हम जो भी खेल खेल रहे हैं पूरे मन से, पूरी लगन से, दिल से, उत्साह से खेलें और जितना हो सके तन मन से उसमें भाग लें। और राष्ट्र के लिए आपको जहां भी मौका मिले, अपने ज़िले के स्तर पर, अपने राज्य के स्तर पर, देश के स्तर पर या ओलंपिक में, यदि आपको मौका मिलता है तो आप राष्ट्र की प्रतिष्ठा को आगे बढ़ाएं और देश के मान सम्मान में चार चांद लगाएं। देश को वो मौके प्रदान करें जब राष्ट्र आप पर गर्व करे, और ये आएगा आपकी मेहनत से, आपकी सोच से और आपकी कर्तव्य निष्ठा से। तो राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य में हमारी ओर से आपको एक अध्यापक के तौर पर मैं पूरे अध्यापक वर्ग की तरफ से आपको शुभकामनाएं देना चाहूँगा और कहूँगा कि आप खूब मेहनत करें और देश के मान सम्मान को आगे बढ़ाएं। वंदे मातरम। कुछ करिए, बस बस बड़ा बोले, अब कुछ करिए। ओ कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए या मरिए, हाय कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए या मरिए। चक ले